मैं आपके साथ शेयर करूंगा लिटिल बिट सी अपडेट। तो पहली अपडेट ये है कि रजब भट्ट ने शहजाद भट्टी को अनफॉलो कर दिया है। अब शहजाद भट्टी का कहना है कि अब मतलब इसने अनफॉलो कर दिया, अब ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं आ रहा। मतलब कि अब इसके साथ कोई भी मसला होता है, ठीक है, फरूक होकर के साथ मसला होता है या किसी और के साथ भी मसला होता है, मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। और उसका कहना है कि इसको जो चीज़ बुरी लगी है, ठीक है, जब इसने लंदन में कहा था कि मुझ पर फरूक होकर ने अटैक करवाया, तब मैंने इसको कहा था कि भाई ऐसा अगर कुछ तुमने व्लॉग बनाया है तो ये चीज़ें मत करो, ठीक है, वरना मैं भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा। इसका कहना है कि उसने इस चीज़ की वजह से उसको अनफॉलो कर दिया। वीडियो देखो जरा। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਬ ਬੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ 'ਚ ਐਡ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਲਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ਰਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਫੇਮ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ, ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ 2012-13 ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਲੂਆਂ ਚਾਲੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 2-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੇਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਕਾਂ ਬੁੜਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚੰਡ ਚੁੰਡ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਂਗਲ ਖੁੱਡ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਵਾ ਕੇ ਜਾਨ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਖੈਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਂਗਲ ਦੇਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫੇਮ ਸ਼ੇਮ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਜੜ ਵੱਢਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਜਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੱਜਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਜੜ ਵੱਢਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਰਕ ਭਾਈ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕ ਭਾਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਤਕਲੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੱਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜੋ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਿਆ ਜੇ। बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, तो अब रिक्वेस्ट है सारे एडिटर्स से, आपने कोई भी शहजाद भट्टी भाई के खिलाफ कोई भी मतलब आपने वीडियो नहीं बना के लगानी, ठीक है। ऐसा नहीं हो रजब के लिए यार। पहली बात तो लड़ाई झगड़े में रखा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें फायदा भी कुछ नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होता है सिवाय नुकसान के। बाकी आजकल ये जो गनी टाइगर के साथ भी शहजाद भट्टी भाई का मसला चल रहा है, ठीक है, कुछ भी हासिल नहीं होता सिवाय नुकसान के। बाकी आजकल ये ना पाकिस्तान में शहजाद भट्टी भाई के बड़े मसले चल रहे हैं, ठीक है। पहले गनी टाइगर के साथ, अब गनी टाइगर के साथ मतलब मुझे समझ नहीं है, इन्होंने उसके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई मैं इसको सबक सिखाऊंगा। हालांकि उसने सीधा सीधा बैठ के बोला है कि शहजाद भट्टी तू फुदू किसी होर बनाई, मैनू ना बनाई, ठीक है। इंडिया में जो बम गिराया था शहजाद भट्टी ने, वो ग्रेनेड, ठीक है, उस पर एल्फी लगा के फेंकी थी ताकि वो फट ना जाए, ठीक है। और वो रोजर संधू के साथ आजकल बैठता है लाइव पे, और काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ट्रोल करता है शहजाद भट्टी भाई को। और वो सरेआम कहता है कि ये चाहता है कि मुझे डॉन को ये तो वो, ठीक है, ये किसी चीज का डॉन नहीं है, ठीक है, मैं नहीं किसी से डरता, ठीक है, मेरे बड़े ऊपर तल्लुकात हैं। लेकिन शहजाद भट्टी ने उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। अब रजब की इतनी सी बात पे इतना सारा माइंड कर गए हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। खैर कोई नहीं, कभी ना कभी शहजाद भट्टी भाई ये भी बात क्लियर कर देंगे। बाकी आपको पता है आयशा वाला और सलमान का मसला चल रहा है। आयशा ने एक और वीडियो अपलोड डाली है जिसमें उसने कहा है कि जो भी सलमान प्रूफ वगैरह दे रहा था वो सब का सब झूठ था, ठीक है, वगैरह वगैरह। वीडियो देखो जरा। सलमान ने जितनी भी बातें लाइव पे रात को बोली हैं, आप लोगों ने सारी वो बातें सुन ली हैं। उसने अपने प्रूफ भी दिखा दिए, उसने अपने सबूत भी दिखा दिए हैं, ठीक है। उसने मेरा फोन स्कैन किया हुआ था, ये जो किया हुआ था ना ये वाला आईफोन, इसमें उसको भी पता है कि 10-15 नंबर है। जो भी उसने सुना, जितने मर्जी उसके पास सबूत है मेरे, ठीक है।
वो कह रहा था ना कि मैंने एप्लीकेशन वापस ली है, आयशा ने वापस ली है एप्लीकेशन, और ये लिख के आई है, बल्कि साइन गुंठा करके आई है। तो यही इंसान था जो मुझे कह रहा था बस एक दफा ना मिलने आ जाओ। और मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है कि मैंने कहा कि सुबह मिलते हैं थाने में, जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी, और उसने मुझे यही बोला कि नहीं मुझे आज ही मिलना है, सुबह नहीं, थाने में नहीं मिलना। और वो भी वही है जहाँ पे कह रहा है कि मैंने पेश नहीं होना वरना हम दोनों ही अंदर चले जाएंगे, इसलिए तुम अंदर जाओ, तुम एप्लीकेशन वापस ले लो। जिसका मेरे भाई ने भी बोला कि तुम वीडियो डाल दो कि मेरी बंदी है, मैं इसके साथ रिलेशन में हूँ। इसके अलावा ये चली जाएगी। उसके बाद मैं नवाब टाउन थाने चली गई, मैंने एप्लीकेशन ले ली। मुझे क्या पता था इतनी बड़ी चाल खेलेगा, जो भी करेगा। बाकी आपने इसकी तो सारी बातें सुन ली, मेरे पास भी बड़े हैवी प्रूफ आए हुए हैं। बाकी जरूरत पड़ेगी अदालत में जरूर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। बाकी आज मैं लाइव आऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने एक साइड पे तो बात सुन ली, अब दूसरी साइड पे भी सुनना। जिसपे वो मैं कह रही हूँ ना मिलियंस व्यू आएगा, वो इसी की एक दोस्त है। मैं उसे क्या कहूँ, मैंने ऐसे किसी को गाली नहीं दूंगी, खैर उनके मैं घर जाऊंगी। उसकी दोस्त को मैं ये कह रही थी कि अगर मैं ये वीडियोस अपलोड करती हूँ तो इन पर मिलियंस व्यू आएगा। ये बात मैंने बोली थी। व्यू लेना हो ना ले भी सकती हूँ, ठीक है, उसका मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों ने एक तरफ से बात सुनी, आज दूसरी तरफ से मैं भी लाइव पे सुनाऊंगी, वो भी जरा सुन लेना। दूसरा ये कह रहा था ना कि ये मेरे से पैसों की डिमांड कर रही थी। सलमान को बोले ये भी कुरान उठा ले, मैं भी कुरान उठा लेती हूँ, ठीक है। अगर मैंने ये बात की होगी ना कि मुझे पैसे इतने दे दो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगी, मैं कहती हूँ कि मैं सारे जितने भी मेरे इल्जाम लगे हैं ना, मैं सारे कबूल करूंगी और मैं कहूंगी कि मुझे बेशक सजा भी दे दो इस चीज की। अगर मैंने ये बोला हो, ठीक है, इसने ये कहा है ना, हाँ, लेकिन उसमें ये बोला कि यार मुझे 10 करोड़ दे दे, मुझे 5 करोड़ दे दे, मैं तेरी जान छोड़ दूंगी, कोई भी ऐसी डिमांड, कोई भी ऐसी, इसे लेगा। जितने इसने झूठ बोलने थे ना बोल दिया मैं। खैर आज मेरे प्रूफ भी सुनेगा। आप लोगों ने एक तरफ से बात सुन ली, खैर मैं अभी जा रही हूँ। और बाकी सलमान को मेरी तरफ से ये पैगाम है कि जितने मर्जी तुम्हारे पास सबूत हो फिर भी मैं केस लड़ूंगी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं। जो लोग साथ दे रहे हैं उनका भी शुक्रिया और जो नहीं दे रहे उनका भी शुक्रिया। नेक्स्ट ये है कि इंडिया की एक ब्लॉगर है ज्योति, वो पाकिस्तान आई हुई थी। उसने पाकिस्तान में आके दिखाया, मतलब हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, ठीक है। जो भी फॉरनर आते हैं किसी और कंट्री के आते हैं, ठीक है, उनसे पैसे नहीं लेते अगर वो कोई चीज़ लेते हैं, ठीक है, उनका बड़े अच्छे से मतलब मेहमान नवाजी करते हैं। तो उसने जो मतलब लोग उसको मिले, ठीक है, मतलब प्यार से मिले, ठीक है, उन्होंने जैसे जैसे उसकी मेहमान नवाजी की उसने वैसे वैसे ब्लॉग में डाले। अब वो इंडिया गई है, ठीक है, उन्होंने जाते उसको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा ना भाई आजा इधर, ठीक है, तू तो पाकिस्तान के जासूस है। मतलब मुझे समझ नहीं आती यार इंडिया वालों की, ठीक है। वो मतलब एक ब्लॉगर ने आके 4 ब्लॉगर क्या मतलब बना दिया पाकिस्तान के हक में, ठीक है। और ये कि लोग कहने लगे कि तू तो पाकिस्तान के जासूस है, पाकिस्तान के जासूस है। यार कभी सुना है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा कोई अपना ही ब्लॉगर पकड़ के अंदर डाल दिया हो कि भाई तू इंडिया की तरफदारी कर रहे हैं, तो इंडिया के जासूस है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब थोड़े दिन पहले डकी ने कहा था कि भाई मेरी विश है कि मैं, उसने वो अलग बात है कि व्यूज़ के चक्कर में कहा था कि इंडिया से व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंडिया जाऊँ। उसने कहा किस मुल्क में जाना चाहते हो? उसने कहा जी मैं इंडिया में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो किसी ने नहीं डकी को पकड़ के अंदर डाला, कहा हाँ तू तो जासूस लगता है, ठीक है। पाथ ट्रैकर के नाम से हमारा एक ये ट्रैवलर ब्लॉगर है, ठीक है। इसकी वीडियो देखो जरा, बाकी इस ज्योति वाली वीडियो पे हम सुबह डिटेल से वीडियो बनाएंगे। इंडियन यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। एक ज्योति मल्होत्रा नाम की एक इंडियन यूट्यूबर है जो कि हरियाणा से तल्लक रखती है। उसके साथ तकरीबन 6 दिग्गर यूट्यूबर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जनाब ये वाकया गुज़श्ता रोज़ का, जब एक इंडियन यूट्यूबर पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए आती है। वो पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाती है, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी, पाकिस्तान के लोगों का एक अच्छा इमेज जो है वो सोशल मीडिया पर दिखाती है, जो कि बिल्कुल हकीकत में है भी। कोई भी ट्रैवल व्लॉगर किसी भी कंट्री में जाता है तो वो हमेशा उसकी हकीकत ही दिखाता है, जो कुछ वो फेस करता है। और ज्योति मल्होत्रा ने भी वही किया, लेकिन इंडियन सरकार जो थी वो इस कदर बुकलाहट का शिकार हो गई कि उनको समझ भी नहीं आई और वो अपने ही यूट्यूबर्स को अरेस्ट करने लग गई। इवन के उसके साथ तकरीबन 6 से 7 और यूट्यूबर्स के बारे में बताया जाता है जो कि पाकिस्तान पहले ट्रेवल कर चुके हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। यात्री डॉक्टर जो है रिसेंटली पाकिस्तान गए हैं, वो भी अपनी स्टोरीज में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि भाई मुझे मत करना, मेरा इस तरह का कोई तल्लक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जो इंडियंस लोग हैं, खासकर जो गोदी मीडिया है, वो इसके बारे में भरपूर वो इंडियन गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहा है कि उनको भी अरेस्ट किया जाए। इवन कि मेरा एक दोस्त यूट्यूबर है तो उसने भी मुझे मैसेज किया कि भाई मैंने तुम्हारे सारे नंबर डिलीट कर दिए, अब मेरा तुमसे कोई रब्ता नहीं होगा। हालांकि इंडिया का बड़ा फेमस यूट्यूबर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डर गए हैं क्योंकि भारत सरकार की अजीब सी हरकतें। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस अकाउंट को फॉलो भी कर लें। इंडिया में जो रजब आर्ट की फैन फॉलोइंग है वो ये बहुत कहती है कि तुम लोग रजब के साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, ठीक है। उसको छोटी छोटी बात पे उस पर केस कर देते हो, ठीक है। उसको मतलब रजब हमारे यहाँ अंदर तो नहीं ना जाता, केस ही होता है ना, वो बाहर तो घूमता रहता है ना, जैसा भी है, ठीक है। एक आध बार वो थोड़ा सा जेल से होके आ गया, आप लोगों ने तो 6 उठा के यूट्यूब पर डाल दिए अंदर। अब इस बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है, आपने अपनी राय देनी है, ठीक है। ऐसा पाकिस्तान में भी नहीं होता। वो कहते थे हमारे यहाँ मतलब बड़ी कोई सुख शांति है, हमारे लोगों को ऐसा नहीं कहा जाता, यहाँ के लोग बड़े डिसेंट हैं, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, अब क्या मतलब आपने ना कमेंट करके लाजमी बताना है नीचे। बाकी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।